اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے بہار ووٹر لسٹ معاملے کو لے کر۔ جی ہاں، خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے اور سپریم کورٹ نے نکالے گئے ووٹر لسٹ سے نکالے گئے 3,66,000 ووٹروں کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ یعنی الیکشن کمیشن کو کہا کہ 3,66,000 جن لوگوں کے نام لسٹ سے نکالے گئے ان کی پوری ڈیٹیل کورٹ میں پیش کی جائے۔ 9 اکتوبر کو اگلی سماعت ہوگی۔ یعنی بہار ووٹر لسٹ معاملے میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے لاکھوں لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے نکال دیے ہیں۔ اسی کو لے کر راہل گاندھی نے اور اپوزیشن پارٹیوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ ووٹر لسٹ کو سے لاکھوں لوگوں کو نام نکالنے کا ایک ષڈینتر ہے، ناپاک سازش ہے جو حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انجام دے رہی ہے۔ اتراکھنڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتراکھنڈ میں مدرسوں کے لیے، مدارس کے لیے نئے تعلیمی نظام کو گورنر کی منظوری مل گئی۔ اب نئے قانون اسٹیٹ اتھارٹی مائنورٹی ایجوکیشن کے تحت ہی مدرسے چلائے جائیں گے۔ جی ہاں، اتراکھنڈ میں اب مدرسوں کے لیے نئے تعلیمی نظام کو گورنر نے منظوری دے دی ہے اور اب نئے قانون اسٹیٹ اتھارٹی فار مائنورٹی ایجوکیشن کے تحت ہی مدرسے چلائے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ اور آسام اور اتر پردیش یہ تینوں سرکاریں وہ ہیں جو لگاتار مدارس کے خلاف اور مدارس کو بند کرنے کی ناپاک شیطانی کوششیں کر رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت بلاسپور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بلاسپور میں لینڈ سلائیڈنگ کا بڑا واقعہ پیش آیا ہے، دردناک حادثہ پیش آیا ہے۔ پہاڑی کا پورا کے پورا ملبہ بس پر گرا جس میں 20 مسافروں کی موت کی خبریں آ رہی ہے اور اس بس میں 30 افراد سوار تھے۔ ہماچل پردیش کے بلاسپور کے علاقے میں یہ واقعہ منگل کی شام یعنی گزشتہ کل یہ حادثہ پیش آیا۔ اچانک پہاڑی سے ایک بڑا ملبہ گرا اور پہاڑی کی قریب سے ایک دم مسافروں کی بس جا رہی تھی جس میں 30 کے قریب افراد سوار تھے۔ یہ حادثہ اتنا خطرناک ہوا کہ 20 مسافروں کی موت ہو گئی۔ ناظرین، اتر پردیش کے قد آور سماجوادی نیتا اعظم خان، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 23 ماہ کے بعد وہ جیل سے باہر آئے ہیں۔ ملنے والوں کا ہجوم ہے، لیکن سماجوادی کے سپریمو اکھلیش یادو آج ان سے ملنے رامپور آ رہے ہیں۔ اسی کو لے کر لگاتار پریس والے اعظم خان سے سوالات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں وقت سے پہلے کچھ نہیں بتا سکتا، وہ میری خیر خیریت کے لیے آ رہے ہیں، میں ان سے ملوں گا اور وہی صرف مجھ سے ملیں گے۔ ملاقات سے پہلے اعظم خان کے بیان نے یوں سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں سپا
अखिलेश यादव सुप्रीमो के दिमाग में सरदर्द में इजाफा कर दिया है, क्योंकि आजम खान के जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के जुल्म को लेकर भी वो लगातार बयानात दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके बयानात से समाजवादी पार्टी से नाराजगी, अखिलेश यादव से नाराजगी भी नजर आ रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक मुबल्लिग इस्लाम, जिन्होंने लाखों लोगों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाया, अल्लाह के दीन की तबलीग की, किसी वजह से हालात ऐसे आए कि उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और इस वक्त वो मलेशिया में मुकीम हैं। लेकिन अभी खबर आ रही है कि मलेशियाई सफीर ने ये बयान दिया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान के हवाले कर देंगे, लेकिन शर्त रखी कि उनके खिलाफ ठोस सबूत दिए जाएं और मलेशिया की अदालत में जारी मुकदमा खत्म होने दें। आप जानते हैं कि भारत में किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है और फिर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद में माननीय कोर्ट ये कहती है कि किसी सबूत के न मिलने पर बाइज्जत रिहा किया जाता है, मगर 10-20 साल उसकी जिंदगी के तबाह कर दिए जाते हैं। जमीयत उलमा हिंद अक्सर ऐसे केसेस लड़ती है कि कई जवानों को जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है और 10-15 साल, 20 साल के बाद उनके बेकसूर होने का ऐलान किया जाता है, यानी उनकी जिंदगियां तबाह कर दी जाती है। किसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक मुल्क से निकलने में कामयाब हुए थे और अब हिंदुस्तान चाहता है कि उन्हें हवाले किया जाए, तो मलेशिया ने भी कह दिया कि उनके खिलाफ पहले ठोस सबूत दिए जाएं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक कफ सिरप, खांसी की, कफ की दवा, जिसने तकरीबन 11-12 बच्चों की जान ले ली, अब उस कफ सिरप पर हुकूमत ने और वजारत सेहत ने पाबंदी लगा दी है। उस कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया गया, उस कफ सिरप के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई और CBI जांच का और सख्त सजा का डिमांड किया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के इस्तेमाल से तकरीबन 14 बच्चों की मौत के बाद मुल्क भर में हंगामा हुआ, तशवीश और डर और खौफ का माहौल बना। इस संगीन मामले में वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में मफादे आम्मा की अर्जी दायर की है, जिसमें गैर जानिबदाराना इंक्वायरी, तहकीकात और कसूरवारों के लिए सख्त सजा का मुतालबा किया गया है। आप जानते हैं कि उस कफ सिरप का नाम है कोल्ड रिफ कफ सिरप। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज पर जूता फेंका, जिसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद चंद्र जी पवार, तमाम लोगों ने कहा। शरद जी चंद्र पवार का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि यह हमला एक खतरे की घंटी है कि किस तरीके से संविधान को और अदालत को और कानून की अहमियत को खत्म करने की नापाक कोशिशें हो रही है। जूता फेंका गया, उससे खतरनाक हरकत यह है कि न जाने किस बुनियाद पर उस शख्स को रिहाई दे दी गई और कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि तंजीमें कह रही है, वकला की खुद एडवोकेट्स की संगठन ने कहा, सबसे पहले उसको अपने संघ से मुअत्तल कर दिया, निकाल दिया, और अब लोग कह रहे हैं कि बाकायदा इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शरद चंद्र पवार ने कहा कि मुल्क में चंद ताकतें हैं जो मजहबी नफरत, मजहबी अज़वियत का जहर फैला रही है, और जूता मारने वाला वकील जिस तरीके से सनातन धर्म की और हिंदुओं की आड़ में छुप रहा था, यकीनन वो इस आड़ में छुपने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, रियासत आसाम से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि आसाम का मुख्यमंत्री भी इस्लाम का और मुसलमानों का बड़ा खतरनाक कट्टर दुश्मन है, और किसी कोबरा सांप से भी ज्यादा, नाक से भी ज्यादा जहर उगलता है मुसलमानों के खिलाफ। अभी खबर आ रही है कि आसाम में एक मुसलमानों का दिल दुखाने वाली वीडियो AI से बनाई गई। खैर, इस वीडियो पर पाबंदी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी किया और मुसलमानों की छवि बिगाड़ने का इल्जाम लगाया गया है। AI के जरिए से सियासी पार्टियां भी अब जोर शोर से
नई टेक्निक एक एआई का इस्तेमाल कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की आसाम यूनिट भी इस मामले में पीछे नहीं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके एक वीडियो बनाया जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत और मुसलमानों की दिल आजारी खुल्लम खुल्ला दिखाई जा रही थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो पर पाबंदी लगा दी और बीजेपी को नोटिस जारी कर दिया है। यानी बीजेपी ही असल मुल्क में मानवता की और मुसलमानों के दुश्मन बनकर सत्ता हासिल करना चाहती है। बीजेपी का मेन मुद्दा है लड़ाओ और राज करो, और यही मुद्दा था और यही तरीका था अंग्रेजों का कि अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल के हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर ही 200 साल तक इस मुल्क पर राज करने में कामयाब हुए थे। नाज़रीन, बिहार इलेक्शन को लेकर फिर एक बड़ी हलचल मचा देने वाली खबर सामने आ रही है। बिहार असेंबली इलेक्शन में एनडीए में दरार की खबरें आ रही है क्योंकि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ इत्तेहाद करेंगे, और चिराग पासवान अगर प्रशांत किशोर के साथ इत्तेहाद करेंगे, गठबंधन करेंगे, तो जाहिर बात है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के इत्तेहाद को लेकर बीजेपी काफी परेशान है क्योंकि बिहार असेंबली इलेक्शन में एनडीए में बड़ी दरार और फूट नजर आ रही है और होती दिखाई दे रही है। वहीं पर यह भी खबर है कि तेजस्वी यादव और खुद उनका भाई भी एक नई पार्टी बनाकर लॉन्च कर रहा है और असेंबली इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी ऐसा लगता है कि बिहार असेंबली इलेक्शन में वोटों की अफरा तफरी और वोटों की फूट सामने आएगी। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा बिरादरी का रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर जबरदस्त आंदोलन हुआ। जरंगी पाटिल, जिन्होंने मराठवाड़ा से यह आंदोलन छेड़ा और मुंबई के आजाद मैदान में इस तरीके से उन्होंने अपना प्रेशर और दबाव हुकूमत पर बनवाया कि हुकूमत ने बाकायदा उनकी कुछ नहीं बहुत सारी मांगे मान ली। लेकिन उसी वक्त मैंने इशारा कर दिया था कि ये बीजेपी सरकार है, इसने किसानों को भी धोखा दिया, इसने जनता को बार बार धोखा दिया। ये कहीं ना कहीं मराठा बिरादरी को भी बड़ा धोखा देगी और अभी धोखा देकर, लॉलीपॉप देकर आजाद मैदान से खाली करने की और आंदोलन से हटाने की कोशिश कर रही है। आखिर वही हुआ, मराठा बिरादरी खुश होकर वहां से आंदोलन को खत्म करके निकल गई। लेकिन बाद में फिर खबरें सामने आई कि हुकूमत ने ओबीसी कोटा और मराठा कोटा इन दोनों में गड़बड़ करके ओबीसी और मराठा को लड़ा दिया, आमने सामने कर दिया। अब खबरें आ रही है कि मराठों को कुनबी सर्टिफिकेट देने वाले सरकारी फैसले पर फिलहाल कोई रोक नहीं। यानी बंबई हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सामने दिया है कि मराठों को कुनबी सर्टिफिकेट देने वाले सरकारी फैसले पर फिलहाल कोई रोक नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि छगन भुजबल, जो खुद एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी का हिस्सा है, उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि मैं ओबीसी रिजर्वेशन को धक्का लगने नहीं दूंगा। तो बीजेपी में मराठा रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बड़ा टकराव और बड़ी फूट सामने आ रही है। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट